So when you give the IPM exam on Sunday, okay, so what you should remember, okay, there are, as I told you a lot of time in the class, okay, you should be smart enough to understand what exactly you are going to do it, right? What exactly you are going to perform and how you are going to solve this. It is not very difficult to qualify for the mega final, okay, especially maybe you should aim for 100% correct, but it's not that easy target to achieve, correct? Especially IPM kind of exam. Although we have done all this 25 years papers, we have solved all the doubts. Okay, it does not give you guarantee that you will do 100% or you will get 100% of it, unless until you are very smart enough and you are through. Okay, and which is a very good achievement. Believe me, if you get 100 on 100 on IPM, okay, you consider to be a very, क्योंकि लक की एक बार चलता है, लक हर बार नहीं चलता है, करेक्ट है? So it is not very easy to score 100%. Even if you score more than 80 or 90%, you consider to be one of the best students, right? Usually 70 to 80%, which is around 28 to 30%. Now we have what did we, when we solved, okay, we've solved this. And when we mark this question, even I was typing, even I was solving, even I was explaining, we could easily complete this 30 to 40 question, even after doing all this explanation and writing and re-explanation, everything, we could do it in 40-45 minutes, right? Yes Yes, or no? yes, sir. Yes, Correct. sir. So even the toughest paper will have 25 question easy or moderate, correct? Which can be easily do well within 1 minute. Sometimes though some question are that you can do it in seconds, 5 seconds, 10 seconds, 15 seconds, like angle वाला सब है, ठीक है? Some prime numbers or something like that, or square number ending with something, right? So you know the trick, correct? And we have done a Yes, lot of things in mental maths, Vedic maths, and short tricks and everything we have done there, right? Square root, cube root, squaring of numbers, cubing of number, and digit, digital sum, estimation, rounding off. We have done a lot of things with this, right? sir. Yes. So Yes, all these particular things you have to apply this. These are one of them. They are not limited. Digital sum is a very effective way to do it, right? And digit, very effective way to do it. Okay. Average, when you sequence this number, how you do it. So these are the very easy thing. Like there is some, usually people don't say there is a circle. Okay. And there are multiple things. I give some of the examples. Multiple things, like there is a circle, there is a 8 dots on this, and what is the number of lines, right? I told you how to do it. So number of dots, when you two dots join, so you suppose number of dot 8. So this is 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Add all of this, right? Or you have n minus 1 divided by 2. That is again a formula, correct? The similar thing, you have number of matches played. Each team work with each team. So how many matches will be played, right? The same thing, same concept. Okay. The another one is, it is something randomly there are, what do you call, circle हो गया तुम्हारा, ये हो गया, then you have same diagonals, right? You have hexagon, octagon, or decagon. Okay, how many diagonals will be drawn, or how many lines will be drawn when each dot is joined with each dot? And suppose you subtract from the side, so when you add all these diagonals, when you put this, your number of side has to be subtracted, correct? Little twist in the question, clear? Then you have, suppose you have 100 people in the, or 50 people in the this thing. Usually you don't get this big number, but suppose you get this. It is not very difficult, right? If you have this 100 people or 50 people or 20 people meeting each other, greeting each other, hello, hello, hello. You seen Super 30? Super 30 में क्वेश्चन था, राइट? उसने बोला था कि if there are 432 people shaking hand with everyone, how many handshakes will be done, right? You got it? It is the same concept what we are using, right? yes, All sir. the competition combination. So I can only do handshake with the, suppose there are 100 people, I can do with the 99 people, right? And the person who have the handshake, okay, second person will go, they have to do only for the 98 because one I already done with them, right? Yes or no? Yes, Third person will be doing only with the 97. So you have 1 to 99. So how do you add? 1 plus 2 plus 3 plus 99. How do you add? You have how many? This thing is 99, right? So what do you do? 1 plus what? 1 plus 99, first digit and last digit. Then second, 2 and 98, 3 and 97, right? That way, you get a center number as 50. How much is that? yes. Center number 50 into 99 करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा. Clear है? So Ah, even however big number you get it, there is always, usually, there is a trick for it.
Like you have skip number of this trick, you can use for the skip number of 2, 3. Okay, you have a square number, you know the square. I told you the square, how to 21 to 30 का square याद रखना है. Correct, how to remember the squares. कैसे याद रख सकते हो. Correct, which is the ending number. When you 12 and 31 में 12 and 21, 3 and 31, 13 and 31. So these are all tricks you have to remember, right? And just practice it. What you're doing is always try to practice this elimination method, most powerful method, especially with the interest calculations, right? Or something which is related to something you want to do is amount, interest. Check what they ask for. They ask you the difference of the interest of two compound simple interest, or they ask you for something different. They ask you the profit and loss, you ask you for the percentage, what exactly they ask for. Correct? And you'll get a number, something which is matching. Correct? So you apply that in the mind, and elimination is very strong method. Don't show your egoistic नेचर बाजी बीच में मत लाना. समझ में आया. नहीं नहीं, मैं तो हिरेन देसाई का स्टूडेंट हूँ, मैं तो कैलकुलेशन करके रहूंगा, मेरे को मेंटल में आता है, वैदिक में आता है. प्लीज डोंट डू दिस. ऑब्जेक्टिव इज मैनेज द टाइम इफेक्टिवली. क्या है? टाइम. टाइम सबसे बड़ा है, राइट? इवन इफ यू कांट सॉल्व द 40 क्वेश्चंस, तुम्हारी नैया डूब जाएगी, राइट? एंड मोस्ट ऑफ टाइम लास्ट में 35 to 40 में कोई भी पेपर उठा लेना. दिस आर द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन व्हाट यू गेट अगेंस्ट. वेरी रेयरली एक आध कोई पेपर में आया होगा, बट यूजुअली लास्ट में थोड़े इजी क्वेश्चन वो लोग रखते हैं. सो मेकिंग श्योर दैट you identify this 8 to 10 question or 6 to 8 questions which are difficult or moderate or calculation relative or time consuming. correct? इससे कुछ भी एक है उसको उस टाइम के लिए छोड़ दो, बिना अटैचमेंट एनी. उसके अंदर बिल्कुल तुम्हारा इमोशन अटैच नहीं होना चाहिए कि मेरे को ये छोड़ना चाहिए, बिकॉज एवरी क्वेश्चन हैज इक्वल मार्क्स. क्लियर है? एवरी क्वेश्चन इज इक्वल मार्क. ओके, देन इफेक्टिवली टाइम मैनेजमेंट टू सक्सीड, राइट? तुम्हारा फर्स्ट 30 मिनट्स में यू शुड एबल टू कंप्लीट मिनिमम 30 to 32 क्वेश्चंस. एटलीस्ट 30 तो कंप्लीट होना ही चाहिए आउट ऑफ 40. एंड इट इज वेरी मच पॉसिबल. इफ यू कंप्लीट 31 मिनट लगेगा, बाकी के 10 क्वेश्चन करने के लिए तुमको 33 टाइम से टाइम मिलेगा. जो तुमको मेगा फाइनल में टाइम मिलता है, वो टाइम तुमको बाकी 10 क्वेश्चन करने को मिलेगा. समझ में आया? मेगा फाइनल यू गेट 3 minutes फॉर ईच क्वेश्चन टू. 15 क्वेश्चन 45 मिनट्स मिलता है, राइट? सो यू गेट द इक्विवेलेंट टाइम फॉर द रेस्ट ऑफ द 10 क्वेश्चन. सेकेंडली, यू डन ऑल 30 क्लियरली. तुम्हारी शॉर्ट मेगा फाइनल में एंट्री क्लियर है. करेक्ट है? क्योंकि 75% से ऊपर नहीं होता है. वेरी रेयरली दे गिव यू 80% इफ इट इज वेरी इजी, बट हायर ग्रेड्स में इट इज नॉट देयर. 80% नहीं होता है. बट स्टिल यू डोंट हैव टू टेक इट टू लाइटली. बहुत ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होने का. अपना टारगेट क्या होना चाहिए? 100% मार्क. करेक्ट? समझ में आया? हाँ सर. मेगा फाइनल अचीव करना अपना टारगेट नहीं. अपना टारगेट क्या है? 100%. करेक्ट? ट्राई फॉर दैट एंड यू कैन डू इट. करेक्ट? If you make more than a minute, understand and solve the question, or you feel it is take more time, just leave this question to solve the last 15 minutes or move to next question without any delay, right? Max in 10 seconds. क्या होना चाहिए? Max in 10 seconds. You should decide. You should decide. क्या डिसाइड करना है? सॉल्व करना. सॉल्व करना है कि छोड़ना है? नहीं, डिसाइड टू इजी. इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट. नहीं, लीव द क्वेश्चन एट द मोमेंट. मतलब छोड़ देना पूरा नहीं, एट द मोमेंट छोड़ना है. अच्छा, जब ये छोड़ दो तुम लोग, ये जब छोड़ दो तुम लोग, करेक्ट, तो क्या करो? ओएमआर शीट में भी पेन से, इसके लिए मतलब क्या करा तुम लोग, ये लेके जाना. व्हाट यू डे? स्केल. डू यू टेल मी, डू यू रिमेम्बर आई टोल्ड यू टू टेक स्केल? स्केल लेके जाना, तो उसके ऊपर रखेंगे तो तुम्हारा नंबर देख के बाद ओएमआर शीट ABCD प्रॉपर मार्क कर सकते हो. यहाँ पे बहुत स्किल चाहिए. भले 2 सेकंड लगता है. डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट देयर. वहां पे गड़बड़ गया, पूरा चेन गलत हो जाएगा. ठीक है? तुम्हारा सब कया धरा पानी हो जाएगा, राइट? इन द फर्स्ट 30 मिनट यू शुड बी एबल टू सॉल्व 27 to 30. 27 तो मैंने लिखा है, लेकिन 30 होना चाहिए. easy question and read most of them questions so that you get a maximum time for the difficult and lengthy ones, right? क्लियर है? अगर तुमने ऑलरेडी वो रीड कर लिया, तुमको मालूम है कि कौन सा है,
वो 10 में से भी यू शुड बी स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि तुमको पहले कौन सा करना है। क्लियर? जो जितना टाइम ज्यादा लगेगा, इजी हो गया, उसके बाद मॉडरेट पे जाओ, मॉडरेट में आ गया, देन उसके बाद कैलकुलेशन पे जाओ, कि जहां पे कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा लगता है, क्योंकि वहां पे तुम सारी ट्रिक यूज कर सकते हो, एस्टिमेशन, राउंडिंग, वेदिक, मेंटल मैथ, सबकी ट्रिक यूज कर सकते हो। और जहां पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लॉजिक है, वो सबसे लास्ट में सॉल्व हो। क्लियर है? यस यस सर। Solving this way, you will be able to attempt 60 to 70% of the question within the most of the effective time, 50% of time, right? करेक्ट है? 70 हाँ भी नहीं है तो 70 to 80% हो जाएगा। 70 भी नहीं, 70%, 75%। करेक्ट? Attempt 75% of question paper, in most of them correct answers with 50% of the time, right? क्या बोला उसने? Solving this way, you may attempted, you may have attempted, मतलब तुम जब कर लोगे, you may have attempted 75 of the question paper with most of them are correct, क्योंकि easy है, करेक्ट होने वाला है वो आंसर। यस और नो? यस सर। बराबर है। विथ 50% हो रहा है। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना हूं, अगर समझो पहले 10 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन टफ आ गए, 6-7 क्वेश्चन टफ आ गए, राइट? कुछ कुछ पेपर अपने देखे, राइट? फर्स्ट 10 क्वेश्चन में ही 7 क्वेश्चन टफ थे। यस और नो? यस सर। लेकिन उसे डरने का नहीं, छोड़ने के पहले एक सेकंड नहीं सोचने का कि इसको मेरे को छोड़ने का है, राइट? जहां तुम इमोशनली अटैच हो गए, अरे यार 10 में से 7, एक थॉट तुम्हारे दिमाग में आया, तुम्हारा 5 मिनट वेस्ट हो गया। समझ में आया? बिना इमोशन में, बार बार बोलो, बिना इमोशन लगाए, कैलकुलेट करना ही नहीं है। 5 में से 7 छूट गए, या 7 में से 2 छूट गए, या 10 में से 8 गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे डू इट फॉर थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट, सो दे कांट सेट टू हैवी फॉर ऑल ऑफ देम। जो 21 में हुआ था एक बार, राइट? तब मैंने उनको फोन करके झाड़ दिया था। करेक्ट? आई सॉल्व ऑल द ग्रेड पेपर। इसके लिए मैंने तुमको क्या बोला? 21 का 40 वाला क्वेश्चन मत करना, इंस्ट्रक्शन दिया था ना मैंने। इफ यू फिनिश ऑल दो वी हैव सॉल्व, लेकिन हमने इंस्ट्रक्शन क्या दिया था? उसके लास्ट में करो, जब सब कुछ खत्म होगा तब डिफिकल्ट। सेम लॉजिक हमने अप्लाई किया। करेक्ट? ठीक है? अराउंड 30 इजी क्वेश्चंस, राइट? ठीक है। यूज द वैदिक मेथड, मेंटल मैथ्स, वेरियस अदर ट्रिक्स, ओके, टॉट इन द मॉक क्लास लाइफ, जो आपने सिखाया है, ठीक है, उसको तुम उसको अप्लाई करो। करेक्ट है? ठीक है। सॉल्व द क्वेश्चन रादर देन द अटेम्प्टिंग फॉर द प्रोसीजरल मेथड विच इज यूजुअली टाइम कंज्यूमिंग, राइट? क्या बोला है? वैदिक मेथड, टेक्निक्स, ट्रिक्स, सब कुछ जो हमने सिखाया, सब कुछ यूज करो। तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर विद द लीस्ट पॉसिबल टाइम। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? लीस्ट पॉसिबल टाइम। करेक्ट? लीस्ट पॉसिबल टाइम। कीप योर माइंड कूल, फोकस। मैंने अभी बोला ना, 10 में से अगर 8 भी छोड़ना पड़े तो वो क्या है ना, कीप योर माइंड कूल। बिल्कुल पेशेंस नहीं जाना है। पेशेंस इज द की टू सक्सेस। धोनी को देखा है तुमने? मैच में खेलते हो, कितना प्रेशर गेम हो, उसके मुंह पे कभी शिकत दिखता है? उसके मुंह पे कभी वरी दिखता है? नहीं दिखता है। नहीं सर। बिकॉज इफ यू कीप योर माइंड कूल, यू विल बी एबल टू डू वंडर्स। अगर तुम वहां पे पैनिक हो गए, पसीना आ गया, ये आ गया, तो खत्म, राइट? एंड दिस इज व्हाट अ गुड पार्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यू शुड नो हाउ टू डू इट इन टाइम। ठीक है? कीप योर माइंड कूल एंड फोकस, रीडिंग एंड सॉल्विंग द वन बाय वन। क्या है? वन बाय सॉल्विंग विद वन आई ऑन द टाइम, राइट? समझ में आया? टाइम का आंसर होना ही चाहिए, साथ में टाइम होना चाहिए। तुम्हारे पास क्लॉक अलाउड, वॉच अलाउड है क्या वहां पे? इलेक्ट्रॉनिक वॉच अलाउड नहीं होगा, लेकिन नॉर्मल वॉच अलाउड होता है, राइट? ठीक है, वॉच पहन के जाओ एक बार। ठीक है? एंड मेक श्योर दैट टू गिव द टाइम, मेक श्योर दैट रीच 15 मिनट्स अर्ली। टीचर को बोलो टाइम दो, जब दो टाइम, अगर 5 मिनट लेट दिया तो टीचर को बोलो कि मैम मेरे को 5 मिनट लेट दिया गया पेपर। ठीक है? उसको पहले ही बोल देना। ठीक है? आर्ग्यूमेंट मत करो, लेकिन उनको बता के रखना कि 5 मिनट मैम मेरे को लेट गया है, अकॉर्डिंगली आई गिव। इसके लिए वॉच सामने होना जरूरी है। कीप द नेसेसरी थिंग्स रेडी ऑन द एग्जाम टेबल बिफोर द इनिशिएटिंग। पेंसिल, स्केल, तुम्हारा जो भी है, कीप इट रेडी, एवरीथिंग, राइट? इरेजर जबकि जरूरत नहीं पड़ेगी, रफ पेपर जो तुमको अलाउड है, ठीक है, वहां पे तुमको करो, रेडी रखो, राइट? रफ सर एफ पेपर पेपर, सर एफ पेपर घर से लेकर जा सकते हैं? ना बेटा, वो तो अलग अलग सेंटर के ऊपर डिपेंड करता है बेटा। वो नहीं लेगा, लेकिन वहां पे देंगे तुमको। और तुम्हारा पेपर तो होता है ना, आईपीएम का पेपर तो होता ही है, राइट? हाँ। आईपीएम के पेपर के ऊपर यूज करो, लेके जाओ पेपर, मैम को दिखा देना, मैम ये पेपर में रफ पेपर के लाया हो। मैम बोलेगे तो फेंक दो, हम दे देंगे, तो फेंक देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट टेक अ ब्लैंक पेपर,
जो प्रिंट आउट पेपर आता है ना, प्रिंट पेपर करने के लिए, उसके मैं ऊपर कुछ भी सर मेरा ये है रूल्ड है। चलेगा, रूल भी लेके जाओ, लेकिन देखो वहां पे अगर तुमको अलाउ करता है तो विच इज ओके, टेक इट, उसमें क्या है, पूरा एक उसके पेपर लेके जाना, अलाउ करा तो ठीक है, या तो बाहर रख देना, कौन सी कष्ट है, राइट। वो सेंटर टू सेंटर डिपेंड करता है, करेक्ट। फॉर एनी क्वेश्चन और डाउट, ठीक है, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है 4 दिन, राइट। मैं अवेलेबल हूँ रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, कभी भी फोन करो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट डोंट कीप इट एनीथिंग फॉर द सैटरडे। सैटरडे खाओ पियो, रिलैक्स करो, मजा करो, घूमने जाओ, मूवी देखो, अच्छी नींद लो, समझ में आया, और रिलैक्स माइंड से लिखो पेपर, समझ में आया ना, सर क्लियर, हाँ एब्सोल्युटली हाँ क्लियर, सर। एनी डाउट्स, नो ठीक है, सर। नो सर। ओके चलो, सो ऑल द बेस्ट, ठीक है, ओके सर। क्लियर है, आराम से लिखो एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट। वी हैव 4 days टू गो, अभी अच्छे से प्रिपेयर करो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशन मैंने आई सेंड यू सॉल्यूशन ऑन द तुम्हारे ग्रुप पे भी दिया है और ऐसे भी दिया है, राइट। हर एक हाँ। का ट्रिक मैंने स्क्रीनशॉट डाल के तुमको दिया है, जहां जहां पे टफ क्वेश्चन है, राइट, ठीक है। हम्म, फिर भी अगर तुमको नहीं समझ में आता, जैसे अभी इसको नहीं समझ में आ रहा था, जिससे पूछा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, विल रिपीट इट, राइट। फोन कर सकते हो या मैसेज करके ग्रुप पे बताएगा, अगर मेरा रिप्लाई नहीं आया 2 घंटे में, कॉल कर लो मेरे को, ठीक है, ओके सर। डन। यस यस सर। सर। चलो ऑल द बेस्ट, मेरे को फोन बाय करना सर। सैटरडे को, करेक्ट, यस ओके, सर। चलो, ओके सर, बाय बाय, सर। सी यू, ऑल द बेस्ट।